محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ ساتواں حصہ، ہجرت سوئے مدینہ۔ بارہواں باب، تیسرے دن غار سور پر۔ صرف ایک شخص جانتا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں غار سور میں بسر کیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ چراتے ہوئے ادھر نکل جاتا اور اندھیرا ہو جانے پر غار کے سامنے جا پہنچتا اور کسی ایک بکری کو غار کے اندر دھکیل دیتا تاکہ دونوں مہاجر ضرورت کے مطابق دودھ دوہ لیں۔ حضرت صدیق کے صاحبزادے عبداللہ رات کے وقت چھپتے چھپاتے غار پر پہنچتے اور مکہ کی ساری خبریں سنا جاتے۔ وہ دن مکہ میں بڑی ہلچل اور بڑے اضطراب کا دن تھا۔ شہر کے سردار بوکھلائے ہوئے ادھر سے ادھر مارا مار پھر رہے تھے۔ لوگ سراسیمہ وار کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر۔ اونٹنیوں اور گھوڑوں پر سوار نوجوان بھالے سنبھالے شہر کے اطراف چکر لگانے لگے۔ دیدبان ٹیلوں پر اور چھتوں پر چڑھ گئے، دور دور تک نظریں دوڑائیں۔ جہاں بھی کوئی سایہ حرکت کرتا نظر آتا 5-10 کی ٹکڑی ہوا کی طرح ادھر جھپٹ جاتی۔ اگر کوئی اجنبی شہر کی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا تو اسے گھیر کر سوالات کی بوچھاڑ کر دی جاتی۔ 2 آدمی، دونوں برابر کے خط کے، بس ذرا سا فرق، گندم گوں کھلتا ہوا رنگ، بھوری سرخی مائل اونٹنی۔ وہ مسافر نفی میں جواب دیتا، نہیں، جس راہ سے میں آیا ہوں اس پر ایسے کوئی 2 آدمی نظر نہیں آئے۔ دونوں کہاں گئے؟ شہر کی ایک ایک گلی چھان لی گئی، گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، دیواروں پر سے جھانک جھانک کر ٹو لگائی گئی، خرما کے ذخیروں کو کھول دیا گیا، گھوڑوں اور اونٹوں کو شمار کیا گیا، مگر وہ دونوں نہیں ملے۔ تلاش کرو جہاں بھی ہوں۔ حرم کے سامنے وہ اونٹنی سوار چیخ چیخ کر احکام دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا اور آواز پھٹی ہوئی تھی۔ حرم کے اندر گوشہ گوشہ دیکھ لیا گیا، کعبۃ اللہ کے پردے تک اٹھا دیے گئے۔ نجورات کے بڑے صندوق کے پیچھے صرف ایک کبوتر ملا جو بیٹھا اونگ رہا تھا۔ وہ دونوں نظر نہیں آئے۔ شہر کی ناکہ بندی تھی، ہر گلی کوچے پر پہرا تھا، گھر گھر مخبر لگے ہوئے تھے۔ پھر وہ دونوں کیسے نکل گئے؟ کہاں گئے؟ آسمان کھا گیا، زمین نکل گئی، آخر گئے کہاں؟ یقیناً وہ شہر کے اندر ہی ہیں، مگر نہیں، ہر گھر کی خانہ تلاشی ہو چکی ہے، وہ شہر کے اندر نہیں، وہ لازماً مکہ سے نکل چکے ہیں۔ نکل چکے؟ اونٹنی سوار دھاڑا، مکہ سے نکل چکے؟ 100 اونٹ۔ ابھی بن خلف اعلان کرا دو،
आला नस्ल के 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। शहर के बाजार में, हरम में, दाखिले के दरवाजों पर नकीब ऐलान करने लगे। इब्न अबी क़हाफ़ा और मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा लाने वाले को 100 आला नस्ल के ऊंट इनाम में मिलेंगे। फिर नाका सवार नकीब आसपास की बस्तियों तक गए। उन रास्तों पर पहुंचे जहां से काफिले आमद और रफ्त करते थे। हर जगह उन्होंने 100 ऊंटों के इनाम का ऐलान कर दिया। मक्का और मक्का के मज़ाफ़ात में कई मील तक हिर्स व लालच की एक लहर सी दौड़ गई। आला नस्ल के 100 ऊंट, और अगर दोनों मिल गए तो 200 ऊंट। दौड़ो, देखो, लब को पकड़ो। 2 सवार, 200 ऊंट। हजारों आंखें हर तरफ टिकी लगाकर सहराई रास्तों को तकने लगीं। कहीं से कोई गोरखर भी भाग खड़ा होता तो 5 की टुकड़ी उधर दौड़ती के शायद। मगर 3 दिन गुजर गए और वो दोनों नहीं मिले। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हो गया था कि बस अब वो वक्त आ चुका है जो अक्सर अंबिया के लिए इससे पहले आ चुका है। इसलिए आप हिजरत की तैयारी कर रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भी अंदाजा था कि बस आजकल में यहाँ से रुखसत होना है। इसीलिए उन्होंने 2 ऊँटनियाँ पहले से खूब अच्छी तरह और फरबा कर रखी थी। उनके सामने हुज़ूर अकरम को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि कुरैश आसानी से उन मक्का छोड़ने नहीं कर दी कि वो देख ना सकते थे। और उसके साथ ही बखूबी समझ चुके हैं कि मक्का से बाहर पटा हो रहा था, इकट्ठा हो गए एक शख्स वो मक्का के लिए खतरा बन जाएंगे था। उन लोगों के पास आया सख्त जो ज़ाहिमत करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए थे। हिजरत के लिए उसने उनसे पूछा, तैयारी कर रखी थी, किसका इंतजार कर रहे हो? जानते थे कि मक्का में किसी जगह पोशीदा रहना मुमकिन नहीं होगा और शहर से निकलकर से कहा बगैर कहीं ठहरे सीधे निकल जाने में भी नाकाम हो गए। दुश्मन की तेज रफ्तार तुम्हारे रास्ते में घेर कर जा चुके हैं। इसलिए आपने देखो उन्होंने तुम्हारे सर पर गारे सौर मट्टी डाल दी है। ले ली जाए। फिर अबू जहल और उसके 10 वहां से निकले, बड़बड़ाते हुए उठ खड़े हुए, शहरा से अपने सर को झाड़ने लगे। समंदर के साहिली रास्ते से उस वक्त मदीने के घर का दरवाजा कर दिया जाए। ये समझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत थी, बरामद हो रहे हैं जो साहिली रास्ते तक, मगर वहां से आगे के लिए रहनुमाई करे। शर्मिंदा रह गए। इस मकसद दरवाजे में मोहम्मद बिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बजाय उजरत पर हाजिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खड़े मजबूत काठी वाला। उन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों को खूब दरियाफ्त किया कि वो कहाँ हैं, और सितारों से हजरत सिमतों को समझने में उसे बड़ा मलका था। क्या जानूं, वो अगरचे ख़ुरैश के दीन पर था, पलट कर मगर शख्स को देखा और मामले का सच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जाने की उसके हवाले कर दी और उसे तो हिदायत वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। गारे सोर पर ऊँट और ले आए। वो उसे पहचान नहीं सके थे, थामे कि रात के अंधेरे में गायब हो गया था। कातिलों के मरगे से सही सलामत निकलने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर गए। वहां हर तरफ सन्नाटा था, मगर अंदर के हुजरे में हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दोनों बेटियां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मसरूफ थीं।
आयशा ने एक चमड़े की थैली में जरूरी सामान ठूंस दिया और अपनी बहन से कहा, जल्दी करो इसे बांधने के लिए। अस्मा को कुछ और नहीं मिला तो उसने जल्दी से अपना कमरबंद फाड़ा, एक टुकड़े से थैली का मुंह बंद कर दिया और दूसरे टुकड़े से मश्क को बांध दिया और 2 आदमियों का ये काफिला रात की तारीकी में सौर की तरफ रवाना हो गया। इस तरह जैसे 2 बेआवाज साए जा रहे हों। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कभी आपके पीछे चलते और कभी आगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह चलने का सबब दरियाफ्त किया तो कहा, मुझे डर होता है कि कोई पीछे से आ रहा है तो मैं पीछे आ जाता हूँ, और जब आगे को कोई खटका मालूम होता है तो आपके आगे आगे चलने लगता हूँ। आपने फरमाया, ए अबू बकर, अगर कोई तकलीफ आए तो क्या तुम चाहते हो कि मेरी बजाय तुम उससे 2-4 हो? सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, बेशक, कसम है उसकी जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया। अब्दुल्ला दोली बिलाशुबा अमीन था। 3 दिन उसने इस राज को अपने सीने में छुपाए रखा जिसके पीछे सारा शहर दीवाना हो रहा था, और मक्का में वही एक शख्स था जिसको मालूम था कि वो दोनों शहर से बाहर गारे सौर में हैं, मगर वो वादा कर चुका था। अल्लाह के रसूल का मुकद्दस राज अपने सीने में छुपाए तीसरे दिन तारों की छांव में वो गारे सौर पर पहुंच गया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला